previous lecture, we learned about another term, that is acceleration. We also derived the formula for acceleration. Acceleration is change in velocity upon time taken. Change in velocity is represented as v minus u and time taken is represented as t. So we got a new formula to find acceleration, that is a is equal to v minus u upon t. In the previous lecture, we also solved certain examples given in your textbook. Now to get the better understanding of how to use this formula, we'll also solve some in-text questions which are given in this particular topic. So below the page where you got the examples of acceleration, in a box you are getting certain questions to solve. Such questions are known as in-text questions. The questions that are not in exercise but they are in the main part of the textbook. Such questions are known as in-text questions. So today we are going to solve in-text sums which are situated on page number 103. So when you take your textbook, on page number 103 in your textbook, you will find certain sums that are unsolved that you have to solve on your own. Such questions are in-text questions and we are going to solve one such in-text question. Now understand this question very properly and try to figure out what is a little bit different thing that we'll do in this sum that we had not done in the examples. Understand the sum properly. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. So you can imagine a bus going on a highway at a high speed of 80 km per hour. Now the driver might have spotted some obstacle, so he would have applied the brakes. So slowly its speed will reduce. So the speed which was initially 80 km per hour is brought down to a speed of 60 km per hour in 5 seconds. Now whenever there is change in velocity, we say that some kind of acceleration has been applied. So in this particular case we need to find the acceleration of the bus. Now dear students, just as we discussed in the previous lectures also, that when the speed is decreasing with respect to time, then the value of acceleration comes negative. So here you can see clearly that speed is decreasing from 80, it comes down to 60. So one thing is for sure, that the value of acceleration will be negative. But the thing to see over here is that speed is given in kilometer per hour. Generally, whenever we solve any sum, we try to take the units in SI form. If you don't take it, you won't get the answers because those particular formulas are applicable when you take those values in some particular formula. So dear friends, remember that while solving any sum of this chapter which deals with acceleration, final velocity, initial velocity, whatever, when you are applying such formulas, at that time you have to convert the speeds into meter per second if the speed is given in kilometer per hour. So in the previous examples, we solved some examples but the speed was already given in meter per second. So we directly applied the formula that acceleration A is equal to v minus u upon t. Put the values and got the answer. Now here we have to do 2 steps more. What are those 2 steps? You need to convert the initial velocity and final velocity which is given in the terms of kilometer per hour into meter per second before proceeding by putting the values in the formula. So what is the initial velocity, what is the final velocity? तो जो शुरुआत की वेलोसिटी है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो बस शुरुआत में कौन से स्पीड से ट्रैवल कर रही थी? बस वाज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर।
उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 80 किलोमीटर पर आवर है वो है इनिशियल वेलोसिटी। और अब तक हमने जो भी सम किए आपको याद होगा, इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज u। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिया है इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब भी कोई स्पीड आपको दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो जो वैल्यू आपको दी हुई है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 1000 एंड डिवाइडेड विद 3600। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो जो किलोमीटर वाला पार्ट है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब मैं यहाँ पे 3600 लिखता हूँ तो जो 1 आवर है वो कन्वर्ट हो जाता है सेकंड में। सो हियर आई विल एलिमिनेट 2 zeros। अब जब मैंने 2 zeros को एलिमिनेट किया नीचे से और ऊपर से, तो ऊपर आया 100 into 8 that is 800 और नीचे आया 36 मीटर पर सेकंड। अब आपको मालूम होगा कि ये 36 अभी कट हो रहा है। मैंने इसको जानबूझ के ऐसा रखा है क्योंकि मुझे नीचे डिनोमिनेटर सेम चाहिए, क्योंकि हमारी फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन a is equal to v minus u upon t। तो मैं जब v minus u करूंगा तो अगर v और u दोनों में नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसका जो कैलकुलेशन है वो इजी रह जाएगा। इसलिए जानबूझ के हम उसको ऐसे ही रहते हैं, सिर्फ जीरोस को एलिमिनेट करते हैं, बाकी पार्ट को हम वैसे का वैसा रखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की? उसकी वैल्यू मैंने फाइंड की 800/36 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड उसकी स्पीड क्या हो जाती है? उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी पढ़ा है दैट फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज v। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैल्यू ऑफ v दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, we'll do the same thing here also. So to convert it into meter per second, this 60 is multiplied by 1000 and divided by 3600। यहाँ पे भी मैं सेम चीज करूंगा, ये जो डिनोमिनेटर वाले 2 zeros और न्यूमरेटर वाले 2 zeros को एलिमिनेट करूंगा तो बचेगा 100 into 6 that is 600/36। अभी मुझे पता है यहाँ 6 कट होता है, लेकिन अगेन मुझे डिनोमिनेटर बेस में सेम चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर आप उसको कट करते हो तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर तो वही का वही आएगा। बट आई फील दैट इफ यू लीव इट लाइक दिस योर कैलकुलेशन विल बिकम मच मोर इजियर। तो अगर आप उसको कट करके करना चाहते हो तो वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा और कैलकुलेशन हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। और जब कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मिस्टेक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए मैंने उसको डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे रखा है अपॉन 36। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है a is equal to v minus u upon t। मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? I have to find the acceleration। That means I need the values of v, u and t। तो देख लीजिए हमारे पास है u की वैल्यू, v की वैल्यू और टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड्स। तो अब हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यूज आ गई है। जो वैल्यूज मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी थी वो भी मैंने कर दी है। सो नाउ आई विल यूज द फॉर्मूला। उनको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? Formula for acceleration is v minus u upon t। I have value of v, I have value of u and I also have value of t। तो मैंने वैल्यू डाली, देखिए v की वैल्यू क्या है? तो v की वैल्यू है 600/36। तो हमने लिखा है यहाँ 600/36 माइनस u, u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है 800/36। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 800/36 अपॉन 5। अभी हमको इसका फायदा दिखा क्योंकि हमने 36 रखा था, तो क्या होगा यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो हमको एलसीएम लेके फिर करना पड़ता, ठीक है। तो 600 में से 800 जाएगा तो आएगा 200/36 अपॉन 5 यानी इट इज डिवाइडेड बाय 5। अगर डिवाइडेड 5 को मुझे मल्टीप्लाई में लेना है तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे -200/36 डिवाइड बाय 5 था उसको मैंने मल्टीप्लाई में लिया, जो डिवाइडेड बाय 5 था वो हो गया 1/5। ओके, अंडरस्टैंड वंस अगेन 600/36
माइनस 800/36, तो 36 तो नीचे कॉमन हो गया, तो यहाँ पे लिखा 36, 600 में से 800 चला गया तो हुआ -200 अपॉन 5। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू आती है उसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। मैंने डिवाइड का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन फॉर कैलकुलेशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिवाइड का जो मल्टीप्लाई होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जो डिवाइड बाय 5 था वो हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1/5। नाउ यू कैन इजीली गेट दिस 5 and 200, 45 सा होता है 200, तो ये 5 कट हुआ, यहाँ पे आया 40, आगे साइन माइनस की थी तो बचा क्या, -40 अपॉन 36। नाउ दिस -40 इज -10 into 4, 36 इज 9 into 4, तो ऊपर नीचे से 4 कट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास -10 upon 9, and when you divide -10 upon 9 you will get 1.11111 and it will go on, वो रिकरिंग डेसिमल आएगा, ठीक है। तो उसको हम 2 डिजिट पे खत्म करेंगे, तो फाइनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A is -1.11 यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज द यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब बस की स्पीड 80 से हो जाती है 60 in 5 seconds, at that time acceleration of bus is -1.11 meter per second square, and the negative sign of acceleration tells us that speed is decreasing with respect to time। अगर यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होती तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती, लेकिन आप जैसा देख सकते हो कि स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव। तो जो हमने सॉल्व किया तो उस बात की पुष्टि हो गई कि एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव। सो वंस अगेन, जब भी आपको इस तरह से कोई सम मिले जिसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। जब वो कन्वर्ट हो जाए then you can apply the formula and then you can proceed with solving the sum. If you forget that and if you then try to solve the sum, then you won't get the correct answer. तो हमने यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर एक्सेलरेशन की फॉर्मूला ली, उसमें वैल्यू डाली, तो हमको आंसर मिल गया, दैट इज -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, dear students, so we will continue solving the index sums which are very important. The next sum on page number 103, the previous sum was also on page number 103, it was question number 2. Question number 1 is a theory question that you can write on your own after going through the notes, after going through the topics in the textbook. Question number 2 we solved previously. This is question number 3 again on same page, that is 103. Same thing, a vehicle is given, the change in speed is given, we need to find the acceleration using the same formula, that is A is equal to V minus U upon T. So let us understand the question first. A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains the speed of 40 km per hour in 10 minutes. So a train is standing stationary at some particular station. जब उस ट्रेन का चलने का टाइम होता है, it starts its motion, it gradually increases its speed. तो जब वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी तो उसकी स्पीड नेचुरली होगी 0, ओके। फिर it increases its speed and attains the speed of 40 km per hour in 10 minutes. तो 0 से 40 km per hour तक पहुंचने में ट्रेन को कितना वक्त लगता है? ट्रेन takes 10 minutes. So using this much data, इतनी इंफॉर्मेशन का यूज करके हमको क्या फाइंड करना है? We have to find the acceleration of the train. Now here as the speed is increasing,
ट्रेन स्टेशनरी थी तो 0 से स्पीड बढ़ के हुई 40, तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव. ओके, नाउ लेट अस सी वेदर एवरीथिंग इज गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट. तो ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, उसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0. इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिस्क्राइब करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय लेटर u. यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर दिस पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज 0 मीटर पर सेकंड. तो मैंने डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया. ठीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट वेदर यू आर टेकिंग 0 किलोमीटर पर और 0 मीटर पर सेकंड इज वन एंड द सेम, क्योंकि वैल्यू 0 है. ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने उसकी वैल्यू को ले लिया 0 मीटर पर सेकंड. आगे, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट अटेन्स द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर. तो जैसा कि हमने प्रीवियस सम में डिस्कस किया that before using the formula for acceleration or for that case any other formula, जो कोई आप वैल्यूज लिख रहे हो, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. दे शुड हैव देयर SI यूनिट्स. तो u को तो आपसे स्टेशनरी पोजीशन थी इसलिए ले लिया 0 मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो v है उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर. तो हमको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर पर सेकंड. तो जैसा कि हमने प्रीवियस सम में भी देखा था कि हम 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 करेंगे. सो आई हैव टेकन 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 और दो जीरोस हम यहां से कट कर देंगे. ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा 4 into 100/36. 4 और 36 कट हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 9. तो ऊपर बचा 100, नीचे बचा 9. ठीक है, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन. You are taking 40 into 1000 upon 3600 into 1000 क्यों? क्योंकि किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट किया मीटर पे, upon 3600 क्यों? क्योंकि मैंने r को कन्वर्ट किया सेकंड में. तो मुझे स्पीड क्या मिलेगी? ऊपर है 100, नीचे है 9, so that is 100/9 मीटर पर सेकंड. उसको मैं ऐसे रखूंगा, आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, leave it as it is. So the value of final velocity v is 100 मीटर पर सेकंड. अभी हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन. एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है v माइनस u अपॉन t. तो हमको v की वैल्यू मिल गई दैट इज 100/9 मीटर पर सेकंड. u की वैल्यू हमने ले ली है दैट इज 0 मीटर पर सेकंड. तो अब बचा टाइम. तो क्वेश्चन में देख लो टाइम कितना दिया हुआ है. टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स. अभी देखो u और v इज इन मीटर पर सेकंड, तो टाइम भी होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ सेकंड. तो जो टाइम मुझे यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इज 10 मिनट्स, आई हैव टू कन्वर्ट दैट टाइम इनटू सेकंड्स. अगर आर में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में. अगर ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है तो देयर इज नो इशू, बट हियर एज द टाइम इज गिवन इन मिनट आई विल कन्वर्ट इट इनटू सेकंड. तो बहुत इजी है. टाइम 10 मिनट्स, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो जो टोटल टाइम टेकन फॉर द एक्सेलरेशन है वो हमको मिलेगा 10 into 60 that is 600 seconds. So now I have value of v, I have value of u and I also have value of t. So now it's easy to find the value of acceleration by using the formula. तो formula क्या है? Formula ये है acceleration a is equal to v minus u upon t. Let's put the values. v की वैल्यू हमने फाइंड की है दैट इज 100/9 माइनस u तो है 100 अपॉन 600. तो माइनस 0 तो वही का वही रहेगा दैट इज 100/9 डिवाइड बाय 600 है. उसको मल्टीप्लाई में किया तो मल्टीप्लाई बाय 1/600. 2 zeros को कट कर दिया तो बचा क्या? ऊपर 1 नीचे 9 into 6. तो 9 6 are 54. So in short value of acceleration is 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ही छोटी आई. क्यों? क्योंकि 0 से 40 जाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है. तो जब टाइम ज्यादा लगता है तो एक्सेलरेशन कम होती है. टाइम जितना कम होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए टाइम ज्यादा लगा, वो कुछ सेकंड होना चाहिए, उसके वजह यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है दैट इज आल्सो 10 मिनट्स. So value of acceleration is very small, that is 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसको अगर आप
आगे डिवाइड करके फाइंड करते हो तो आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि द स्पीड was increasing over here। तो जब स्पीड इंक्रीज होती है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। डियर स्टूडेंट्स, एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आल्सो, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क के अंदर एक ही थियरी आएगी जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम डिराइव करेंगे फॉर्मूलाज, बाकी छोटे छोटे डेफिनेशन से और ज्यादा वेटेज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का है। ये न्यूमेरिकल्स आपको 10th, 11th और 12th में भी काम में आने वाले हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स है उस पर हमारी पकड़ बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए, इंटेंस क्वेश्चन है वो भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए। तो अब आपको पता लगाना है कि आपको पूरी थियरी समझ में आई है कि नहीं। सो फॉर दैट आई हैव रिटन 2 एक्स्ट्रा सम्स बेस्ड ऑन द सम्स दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। ये जो 2 सम है उसमें कुछ नया नहीं करना है, जो सम्स हमने ऑलरेडी अब तक सॉल्व किए हुए हैं वही टाइप के सम्स 2 मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 2 सम्स को आपको सॉल्व करना है और वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें इन दोनों सम का आंसर लिखना है कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। पहले केस में हमारे पास एक कार है, दूसरे केस में हमारे पास ट्रक है, दोनों की फाइंड करना है हमको एक्सेलरेशन। ओके, सो इन द कमेंट बॉक्स you need to write the values of acceleration in sum number 1 and sum number